Hello students, we are discussing the different atomic theory. In the previous period, we have already learned about Rutherford's atomic model. We know that in Rutherford's atomic model, atom consists of positive charge center known as nucleus and the negatively charged particle known as electrons are revolving around nucleus in circular orbits. But that model has different drawbacks. We know that according to Maxwell's electromagnetic theory of radiation, during revolution, electron emits energy in the form of radiation. Due to that, its orbit of revolution becomes smaller and smaller. Due to that, your electron comes closer to the nucleus and finally it drops into nucleus. This model of an atom given by Rutherford is unstable. Second thing is there that theory fails to explain the spectrum of certain elements. Also, this theory fails to explain the distribution of electron around nucleus, and due to that, a new theory is given that we will learn here. That is called Bohr's atomic theory or Bohr's atomic model. What Bohr's atomic model says, that is, atom consists of positively charged center known as nucleus of an atom. Is agree with your Rutherford's atomic model, and the negatively charged particles, that is known as electrons, they are revolving around nucleus in different orbits. Here, Bohr introduced the concept of multiple orbits here. That is, the negatively charged particle known as electrons, they are revolving around nucleus in circular orbits, and these orbits are called as the stationary states. That is the first point of this theory. That is, electron revolve around nucleus in circular orbits known as stationary states. What is the meaning of stationary state? That is, stationary means fixed. What is the meaning of stationary states? That is, these are the orbits in which electrons are revolving, and during revolution, as it is fixed in position and fixed in energy, your electron does not emit radiation. आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को एमिट नहीं कर सकते बिकॉज एक ऐसे स्टेशनरी स्टेट्स है. स्टेशनरी मीन्स फिक्स है, दैट इज फिक्स इन पोजिशन एंड फिक्स इन एनर्जी. सेकंड थिंग इज देयर, दिस स्टेशनरी स्टेट्स हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसकी एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. ये आपकी पहली स्टेशनरी स्टेट है. मैं दिखाऊँ इसको n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 लाइक दिस. आगे चलते तो डेफिनेटली आएगा n इक्वल टू 4 लाइक दिस वन. ये सब क्या है? डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट है. ईच स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्ड टू डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका मतलब पहले की एनर्जी फिक्स है. इसकी एनर्जी सपोज मैं E1 से दिखा दूं, दूसरी की एनर्जी E2 से, तीसरे स्टेट की एनर्जी E3 से, चौथी की एनर्जी क्या E4 से. मीन्स हर एक की एनर्जी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी. मतलब पहले ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी एनर्जी E1 है. एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है? E1 है. दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2 से दिखाते हैं. इसमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? E2 रहेगी. जैसे मैं तीसरे ऑर्बिट में जाता तो वहां पे आपको मालूम 18 इलेक्ट्रॉन रहते. पहले में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? E3 रहेगी. और जैसे मैं चौथे में जाऊं तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? E4. मीन्स दे हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स. मीन्स उसका नाम, दूसरा नाम क्या होगा? स्टेशनरी स्टेट, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी सेल्स. नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस एनर्जी लेवल, that is energy of stationary state or energy of orbit goes on increasing as we are going away from the nucleus. मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे चलते तो क्या होती? उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. मीन्स आपके जो पहले दो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहे उसकी एनर्जी कितनी थी? E1. वो उसकी एनर्जी कम होगी E1. जैसे हम आगे चलते, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है दूसरे में, तो उसकी एनर्जी रहेगी E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा रहेगी. यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी फिर से क्या होगी? बढ़ेगी, E3 हो गई. जैसे मैं यहाँ पे जाता E4, एनर्जी अगेन इंक्रीजेस. मीन्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. E1 से E2 ग्रेटर, E2 से E3 ग्रेटर, E3 से E4 ग्रेटर, पांचवे में E5 होगा, E5 उससे भी ग्रेटर होगा. मीन्स एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थियरी. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द नेक्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द थियरी इज देयर. अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, आपको मालूम था यहाँ पे न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था. अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन. ऐसा बोला था हमने कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? एनर्जी एमिट्स करता, and due to that it comes closer to the nucleus and finally drops into the nucleus. And
according to that your model is unstable. But Bohr overcome this drawback of Rutherford's model, atomic model, by giving a new concept. He says that during revolution, जब वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन neither emits radiation, ना तो एमिट वो क्या कर सकता, रेडिएशन को एमिट नहीं करता, नॉर एब्सॉर्ब्स रेडिएशन, ना तो रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता. मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ना तो एनर्जी एमिट करता ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता. बट इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी, एब्सॉर्ब तो करता बट कब, बट एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी. मीन्स पहले एन इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन यदि यहां जंप होगा E1 से E2 में, यहां से यहां जंप करता तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और वहां पे जंप करेगा. मीन इट एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल. मैं E1 से दिखा दूं, स्ट्रेट लाइन से दिखा मैंने, यहाँ पे सर्कुलर है, मैं यहाँ E2 है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है E1 में जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको यदि जंप करना है तो ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और हायर लेवल पे क्या होगा, जंप होगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, इवन यानी लोअर साइड की एनर्जी, कम एनर्जी वाला, टू हायर एनर्जी लेवल. तो इस केस में क्या करता, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. ध्यान, मेरे को एनर्जी क्या करता हो, एब्सॉर्ब करता है, तभी वो क्या करता है, E2 में घूम सकता है. एंड इट एमिट्स रेडिएशन, एमिट भी करेगा कब, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम E2 टू E1. मीन्स E2 यानी हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको यदि लोअर में जाना है तो क्या करेगा, इसके लोअर एनर्जी में घूमना है तो क्या करता है, इट एमिट्स रेडिएशन, तब क्या कर सकता हो, लोअर एनर्जी में घूम सकता है. मीन्स इन दैट प्रोसेस फिर इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स रेडिएशन. बट ड्यूरिंग रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन नेवर एमिट्स और एब्सॉर्ब्स रेडिएशन. दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय बोर्स. यहाँ पे था कि जब वो घूमता है तो एनर्जी एमिट करता, that concept is there in the Rutherford's atomic model. But in this case, it absorbs energy where it jumps from lower to higher level. Low से high जाना तो एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और इसको यदि हायर से लोअर एनर्जी में आना, लेवल में आना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, तब क्या कर सकता है, लोअर एनर्जी में घूम सकता है. एंड एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब, एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग जंपिंग, ये जो प्रोसेस है जंपिंग का, वहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब या तो एमिट होगा, दैट एनर्जी एब्सॉर्ब और एमिटेड ड्यूरिंग जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज डेल्टा ई. डेल्टा ई का मतलब होता है, डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी, इक्वल टू E2 माइनस E1. कितना रहता है, E2 माइनस मीन्स एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, एंड इट इज इक्वल टू H न्यू. यहाँ पे H का मतलब होता प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू का मतलब होता फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. मीन्स एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 का मतलब होता एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, H is called the Planck's constant and nu is called the frequency of radiation. That is your energy emitted or absorbed during jumping of electron. And the last postulate or last point of this Bohr's atomic model, that is electron revolves around nucleus in certain orbit. किसी भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, उसको भी एक सिलेक्शन रूल है कहाँ घूम सकता. दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्टन ऑर्बिट्स, बट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल. वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. वो क्या रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता, लीनियर मोमेंटम सबने पढ़ा है. दैट इज एक आधी बॉडी है, उसका मास m है और मूव हो रहे वेलोसिटी v से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम. लीनियर यानी एक लाइन में यदि मूव हो रही तो इसका मोमेंटम जो होगा उसको बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम. दैट इज कॉल्ड द मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. एंगुलर मोमेंटम कब रहता, एक आधी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही, सर्कुलर पाथ में घूम रही, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, या इलेक्ट्रॉन है और घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. उसकी वैल्यू क्या रहती, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है और उसका वेलोसिटी कितना है. मीन्स MRV चेंज किया, M इंटू वी लीनियर मोमेंटम, स्ट्रेट लाइन में मूव होता. तो एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन. तो मास ऑफ द बॉडी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइट वेलोसिटी है, अलॉन्ग विद दैट उसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसको हम लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. MRV इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई. मीन्स इट इज इन इंटीग्रल मल्टीपल. n का मतलब 1 2 3 h अपॉन 2 पाई. इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, एक आधा इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में कब घूम सकता, जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इसका सिंपल मीनिंग में बताऊं, यदि मैं पहला ऑर्बिट ले लूं, पहला ऑर्बिट लिया मैंने, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम MRV इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं n इक्वल टू 1. n की वैल्यू 1 होगी तो ये आएगा n इंटू h अपॉन 2 पाई. ये आपका फार्मूला है. n इक्वल टू 1 तो ये रहेगा h अपॉन 2 पाई. h अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू MRV. MRV की वैल्यू कितने रहेगी, h अपॉन 2 पाई. दूसरे में जाता तो डेफिनेटली क्या होगा, n की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे होगा h अपॉन 2 पाई. दूसरे में घूमता है उसकी रहेगी ट्वाइस h अपॉन 2 पाई. तीसरे में इलेक्ट्रॉन घूमता है थ्राइस h अपॉन 2 पाई. मीन्स एंगुलर momentum of an electron that should be an integral multiple of h upon 2 pi. That is the next postulate of this theory. Means यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मास एज इट इज है, वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर चेंज हुआ. MRV की वैल्यू काय के बराबर रहेगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, एंड दैट इज नोन एज द बोर्स एटॉमिक मॉडल. दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ योर बोर्स एटॉमिक मॉडल. इन शॉर्ट मैं फिर से रिकॉल करा दूं, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ योर बोर्स एटॉमिक मॉडल. व्हाट इट सेज, atom consists of positive charge center known as nucleus and negatively charged particle known as electron. They are revolving around nucleus in different orbits. यहाँ पे multiple orbit का उसने concept दिया. Your postulate starts from here. उसके जो main points है, electron revolve around nucleus in a circular path or circular orbit known as stationary state. Stationary means fixed in position, fixed in energy. Each stationary states correspond to definite amount of energy. E1, E2, E3, E4 like this one. Therefore, they are called the energy shells or energy levels. इसकी energy fixed is the word stationary state is also called as energy levels or energy cells. Next thing is there, energy of the stationary state goes on increasing as we are going away from the nucleus. इसका मतलब whatever electrons are closer to the nucleus उसकी energy कम होगी, E1 कम है. As we are going away from this one तो आपकी energy फिर से बढ़ी, E1 से E2 greater होगा, फिर E3 greater होगा और E4 भी. मीन्स we are going from, as we are going away from the nucleus, energy of the electron goes on increasing or energy of orbit goes on increasing. Next thing is there, during revolution electrons neither emits nor absorbs energy. revolution के समय इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है ना तो emit करता है, but it absorbs energy when it jumps from lower energy level to higher energy. लो से हाई जाना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करके जा सकता, and it emits energy when it jumps from higher to lower level. The energy emitted during jumping or energy absorbed during jumping is given by the equation delta E equal to E2 minus E1 is equal to h nu. यहाँ पे सबके पैरामीटर हमें मालूम, डेल्टा ई एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब, E2 energy of higher level, E1 energy of lower level, h is Planck's constant and nu is called the frequency of radiation. And the next point is there, that and the last point, that is electron revolve around nucleus in certain orbits. किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता हो, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, but only those orbits are possible for which angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi. इसका मतलब MRV की वैल्यू कैसी रहेगी, पहले ऑर्बिट में घूमता तो n की वैल्यू 1 होगी, h upon 2 pi. सीधी यहाँ पे है तो h upon 2 pi. दूसरे ऑर्बिट में तो यहाँ पे 2 होगा, ट्वाइस h upon 2 pi. तीसरे में थ्राइस h अपॉन 2 पाई, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके बराबर होगा. एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ योर बोर्स एटॉमिक मॉडल.